Hi everyone, welcome you back in this physics video. Today we are going to learn about that how do we write position vector, displacement, velocity, acceleration of the particle which are moving in a plane. Let us to start over here with this position vector. So position vector, student, when we are saying that motion in plane, it means to say that it is two-dimensional motion. Okay. So therefore here I am having this is that reference axis, x-axis and y-axis. So that unit vector which will indicate this x-axis, it is I unit vector, while which will give us this j unit vector along y-axis. Okay. Now let us suppose that it is the position of the particle, so which is given by that x in x-axis while y in that y-axis. So these are the coordinate of that position. So how we will write this position vector? The position vector, it is that distance of particle from that origin. Okay, so this position vector we are going to write it with that r. Okay, so thus we get that this position vector in terms of that two rectangular component, it will come then x I unit vector plus y j unit vector. This will be the position vector over there. Okay, and how we will find out the magnitude? तो magnitude student इसका क्या हो जाएगा? Square of that term which is along with the I, so it is x square. Square of the term which is along with the y, so it is that of j, it is y square. Okay, so this is the magnitude of that position vector. So it is in two dimension. So motion in a plane. Now over here let us to take that how we will write the displacement. अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इस टू डायमेंशनल मोशन में. सो वंस अगेन दैट वी आर गोइंग टू कंसीडर द reference axis. This is x axis while this is over here y axis, and here it is reference point. Initially this particle it is at p. ओके, सो इट्स कोऑर्डिनेट, तो जो एक्स एक्सिस में इसकी पोजीशन x1 थी और y एक्सिस में इसकी पोजीशन y1 थी. ओके, तो व्हाट विल बी इस पोजीशन वेक्टर देन? तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा स्टूडेंट? दिस विल बी r1 वेक्टर विच इज़ गिवन बाय x1 I यूनिट वेक्टर प्लस y1 j यूनिट वेक्टर. दिस विल कम देयर. द सेम प्रोसीजर वी आर यूजिंग नाउ, क्योंकि एक्स एक्सिस को आई यूनिट वेक्टर से डिनोट किया जाएगा और वाई एक्सिस जो है वो जे यूनिट वेक्टर से डिनोट किया जाएगा. ठीक है. नाउ दिस पार्टिकल इट मूव्स फ्रॉम पी टू क्यू. ये यहाँ पर पी से क्यू चला जाता है. सो देयरफॉर व्हेन इट रीचेस टू पी, सो दैट टाइम जो क्यू के पोजीशंस हैं वो हमारे पास x2 और y2 हो जाते हैं. ठीक है. सो देयरफॉर व्हाट विल बी इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट? तो इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट स्टूडेंट लेट अस टू सपोज इट इज़ r2. ओके, सो दिस r2 विल बी, तो कैसे लिखा जाएगा उन पोजीशन कोऑर्डिनेट्स में? इट इज़ x2 I यूनिट वेक्टर प्लस y2 जे यूनिट वेक्टर. ठीक है. नाउ हाउ मच इज दैट डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट हमारे पास ये क्या करता है? पी से क्यू की तरफ जाता है. ठीक है. तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कैसे फाइंड आउट की जाती है? सो दिस डिस्प्लेसमेंट ओवर हेयर वी आर टेकिंग इट विद डेल्टा आर वेक्टर. सो इट इज़ गिवन ओवर हेयर. स्टार्टिंग कहाँ से हुई? पी से, और एंडिंग कहाँ पे हो रही है? क्यू के ऊपर. तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलती है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. तो फाइनल पोजीशन इज गिवन बाई r2 वेक्टर and initial position is given by r1 vector. So thus we got over here r2 is what? There it is x2i plus y2j, x2i unit vector plus y2j unit vector and minus of x1i unit vector plus of y1j unit vector. Okay, so thus we can write this as that of I, and it is also of I, so both are in same direction, so put write them together. So therefore it is x2 minus of x1. See, it is plus x2, it is minus x1, so they are along x axis, so I unit vector is indicating that one. And next is there, it is plus of y2 minus of y1, and this is along j axis. ठीक है. So we are looking that this is what? Displacement vector. ठीक है. So now here there is a change in x and this is a change in y. So this change in x I am going to show it with the delta, and it is along this x axis, plus change in y is written by with this delta y. So this is that displacement in two dimension.
इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट इन टू डायमेंशन वेयर डेल्टा एक्स का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, डेल्टा एक्स का मतलब हो गया हमारे पास x2 माइनस ऑफ x1, और जो डेल्टा वाई है इसका मतलब क्या हो गया y2 माइनस ऑफ y1। ठीक है, तो इनको आप डायरेक्टली यहाँ पर x2 माइनस x1 करके डेल्टा x निकालोगे, y2 माइनस y1 करके डेल्टा y निकालोगे, और जब इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, सो देयर इट इज़ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो आई के साथ जो टर्म है उसका स्क्वायर होगा, तो इट इज़ डेल्टा एक्स का स्क्वायर, प्लस जो जे के साथ है उसका स्क्वायर लोगे तो इट इज़ डेल्टा वाई का स्क्वायर होल अंडररूट। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन टू डायमेंशन। नाउ लेट अस लुक वेलोसिटी इन टू डायमेंशन. So velocity of a particle in a plane, student, how we will write this one? So as velocity is what? It is change in displacement with that change in time. Okay, this is written over there. And in our previous expression we come to know, जो अभी हमने previous expression किया उसमें हमने लिखा जो change in position है उस plane के अंदर, ठीक है, वो कैसे होती थी हमारे पास, इट इज़ गिवन एज डेल्टा एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस डेल्टा वाई जे यूनिट वेक्टर, दिस इज गिवन दैट डिस्प्लेसमेंट इन दिस टू डायमेंशन. ओके, सो वी कैन आल्सो राइट दिस वन. तो जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी, दिस इज गोइंग टू बी एवरेज वेलोसिटी, it is average velocity, take it as average velocity. How do we find it out? Now it is equal to separate the denominator, we will get that delta x by delta t I unit vector plus delta y by delta t, it is j unit vector. Now delta x by delta t, it is change in position along x axis with the time, so that will be द वेलोसिटी. जब पोजीशन टाइम के साथ बदलती है तो उसको कहते हैं वेलोसिटी कहते हैं, तो इसलिए ये कैसी वेलोसिटी होगी, दैट इट इज़ डेल्टा वी एक्स. ठीक है, so it is along x axis plus it is that a change in velocity along y axis, so therefore it is given as vy. So this is j unit vector, so thus we get it is as the average velocity, this is average velocity. So how we will find out this average velocity, so it will be that change in velocity along x axis and plus change in velocity along y axis. Okay, and over here that हाउ वी विल फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस. अब बात आती है इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है, ठीक है, उस टू डायमेंशन में वो कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं. तो इंस्टेंटेनियस के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जो डेल्टा टी है उसको बहुत कम कर देते हैं, तो ये टेंड्स टू जीरो हो जाता है. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी में आप क्या करोगे, लिमिट लगा दिया आपने, डेल्टा टी को छोटा करना है, बहुत छोटा करना है. ठीक है, जिससे क्या होगा, पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर आप वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हो. सो दिस इज दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v, सो विच इज इक्वल टू दैट लिमिट एंड इट इज डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो. तो एवरेज वेलोसिटी स्टूडेंट हमारे पास हाउ वी हैव रिटन, सो यू कैन सी दैट वन, इट इज रिटन सिंपली वट दैट डेल्टा आर वेक्टर अपॉन में डेल्टा टी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद द टाइम. ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी लिखा गया था, है ना. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, टाइम को डिक्रीज कर रहे हैं. ठीक है, तो जब हम टाइम को डिक्रीज कर रहे हैं तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, बहुत स्मॉल बन जाएगा चेंज इन टाइम. तो इसलिए जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या हो जाएगी, बहुत स्मॉल हो जाएगी. तो इसलिए जो वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है उसको हम डी आर बना देंगे, और जो टाइम चेंजेस है वो डी टी बन जाएगा. तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए बन जाएगा. ठीक है, नाउ एज ऑलरेडी इट इज़ रिटन ओवर देयर, जो पोजीशन वेक्टर है कंपोनेंट फॉर्म में वो क्या लिखा था, एक्स आई प्लस वाई जे लिखा गया था. ठीक है, सो देयरफॉर दिस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इट इज़ डी डी टी ऑफ दैट एक्स आई प्लस वाई जे. ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास बन गया. नाउ हेयर वी कैन राइट इट दिस, ये जो डी डी टी है वो ब्रैकेट के इनसाइड मल्टीप्लाई होगा, सो इट इज़ डी डी टी ऑफ एक्स आई प्लस डी डी टी ऑफ वाई जे. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस. तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस है. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या बन गया स्टूडेंट, यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी है, सो हेयर दैट आई एम गोइंग टू शो it is not average but that instantaneous velocity, so it will be equal to that velocity of particle instantaneously at along x axis plus
that velocity of the particle which is instantaneous in y axis. So this is given with this is j unit vector. Okay, so this is over here. So what does the meaning of that vx and vy? तो vx का मतलब हो गया स्टूडेंट इट इज चेंज इन पोजीशन अलोंग x axis, while this vy it means that a change in position along y axis with time. Okay, so this is the meaning for vx and vy. Now if we want to find out over their magnitude, अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहते हैं स्टूडेंट तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड जो है वो सिंपली दिस विल कम आई के साथ जो वैल्यू है उसका स्क्वायर लिखना है, तो वी स्क्वायर एक्स प्लस वी स्क्वायर वाई. सो दैट्स दिस इज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन अ प्लेन. तो प्लेन के अंदर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास शो की जा सकती है. ओके, नाउ let us to look over here instantaneous acceleration. over here student acceleration in a plane, तो acceleration हमारे पास कैसे लिखी जाती है. so it is average acceleration is given by that this is change in velocity with that change in time. okay, it is written over there. now in our previous section we come to know change in velocity जो है उस 2 डायमेंशन के अंदर प्लेन के अंदर कैसे लिखी गई थी. that it was change in velocity along x axis प्लस चेंज इन वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस. ठीक है, दिस इज ओवर देयर. ये क्या था, डेल्टा वी था. अभी हमने प्रीवियस में इसको सॉल्व किया अपॉन में डेल्टा टी. सो सेपरेटिंग द डिनोमिनेटर, सो वी विल गेट दैट एवरेज एक्सेलरेशन विल बी डेल्टा वी एक्स अपॉन में डेल्टा टी आई यूनिट वेक्टर प्लस डेल्टा वी वाई अपॉन में डेल्टा टी इट इज़ जे यूनिट वेक्टर. ओके, दिस इज ओवर है. तो व्हाट दिस इज इंडिकेटिंग, ये हमें इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट की जो वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम के साथ बदल रही है, और ये कह रहा है कि वेलोसिटी जो है वाई एक्सिस के अलोंग टाइम के साथ चेंज हो रही है. ठीक है, तो इसलिए जो वेलोसिटी जब टाइम के साथ बदलती है वो एक्सेलरेशन हो जाती है. लेकिन ये एक्सेलरेशन किस कौन सी डायरेक्शन में है, दिस विल बी अलोंग एक्स एक्सिस. ठीक है, तो इसलिए ए एक्स आई डेल्टा ए एक्स आई एंड दिस इज डेल्टा ए वाई जे. ओके, सो दिस इज अवर एवरेज एक्सेलरेशन. ये एवरेज एक्सेलरेशन स्टूडेंट हमारे पास आई. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज देयर कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है स्टूडेंट, इसमें क्या करना होता है, आपने डेल्टा टी को टेंड्स टू जीरो लेना होता है. ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि लिमिट लगा दी हमने, डेल्टा टी जो है वो टेंड्स टू जीरो करेगा, तो जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है एट पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो एक्सेलरेशन है उसको फाइंड आउट किया जा सकता है. सो दस इट इज़ एवरेज एक्सेलरेशन कैसे लिखी गई थी, तो ये डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यानी कि हमारे पास दिस इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम यूज़ किया गया. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डिक्रीज द टाइम. आपको टाइम कम करना है. जब आप टाइम कम करोगे स्टूडेंट तो उस वक्त जो चेंज इन वेलोसिटी है वो भी कम हो जाएगा. ठीक है, तो इसलिए क्या कर रहे हो, आप टाइम को नियर टू जीरो लेके जा रहे हो, तो इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है ना इसका चेंज भी बहुत छोटा हो जाएगा. तो इसलिए वेरी स्मॉल चेंजेस आर गिवन बाय दैट डी. तो इसलिए हमारे पास ये चेंज इन स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी विल बी डी बी एंड स्मॉल चेंज इन टाइम दैट विल कम देन डी टी. सो इट इज डी बी बाई डी टी. लेकिन हमारे पास ये जो वेलोसिटी थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो थी उस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्या लिखी गई थी स्टूडेंट, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे. ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास से लिखी गई. सो दस वी कैन गेट दिस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. नाउ इट इज़ डी डी टी ऑफ वेलोसिटी की जगह आपने ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है, इट इज़ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस है. ठीक है, सो ये जो डी डी टी है वो इनसाइड मल्टीप्लाई करेगा, जिससे हो जाएगा डी डी टी ऑफ वी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस डी डी टी ऑफ वी एक्स जे यूनिट वेक्टर. सो यू विल गेट दैट दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंजेस अलोंग एक्स एक्सिस विद टाइम. और यहाँ पर ये क्या हो रही है, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो उस वाई एक्सिस के अलोंग क्या कर रही है, टाइम के साथ बदल रही है. तो इसलिए जब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है तो वो एक्सेलरेशन होती है. तो ये कैसी वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस है और किस तरफ है, एक्स एक्सिस में, तो इसलिए ये एक्सेलरेशन बनाएगा. इट इज़ ए एक्स आई एंड ओवर देयर ये बनाएगा एक्सेलरेशन जो वाई एक्सिस के अलोंग है, तो इट इज़ ए वाई जे. सो दैट्स वी गॉट ओवर हेयर कि हमारे पास जो
एवरेज एक्सेलरेशन है स्टूडेंट, वो हमने फाइंड आउट कर ली थी, और ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है जो ए एक्स आई, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और इंस्टेंटेनियस अलॉन्ग दैट वाई एक्सिस है। तो ए एक्स का मतलब क्या हो गया था यहाँ पे, दैट इट इज़ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंज अलॉन्ग एक्स एक्सिस विद टाइम, और जो ए वाई है इट इज़ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंज अलॉन्ग वाई एक्सिस विद टाइम होता है। ठीक है, नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट, जैसे अगर हम बात करेंगे व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस दैट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, तो जैसे हमारे पास स्टूडेंट ये दिया गया है यहाँ पर, दिस इज़ अ कर्व ग्राफ, ये कर्व ग्राफ है, और यहाँ पर जो पोजीशन थी पहले वो हमारे पास P के ऊपर थी, तो इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट R1 बने थे। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, इस कर्व के अलॉन्ग जो है वो P से Q के ऊपर चला जाता है, Q, तो इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या हो गए R2। इफ़ वी टॉक अबाउट इस कर्व के ऊपर जो P पर वेलोसिटी होगी दैट विल बी द टेंजेंट ओवर इट, तो ये V1 वेलोसिटी बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, एंड ओवर हेयर एट P, तो हमारे पास टेंजेंट से, तो Q के ऊपर भी टेंजेंट लेकर के ड्रॉ कर दो, सो दिस इज़ V2 वेलोसिटी। ठीक है, तो इसलिए एक कॉमन पॉइंट ड्रॉ करो। ठीक है, टेक द पैरेलल टू दिस वन, आपको ऑलरेडी बताया था कि वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, तो इसलिए इसको शिफ्ट किया यहाँ पर। ठीक है, तो ये V2 इस तरह से आ गया हमारे पास, दिस इज़ V2, और इसको यहाँ पे शिफ्ट किया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से अरेंज हो गया। ठीक है, इट इज़ V1, तो हमारे पास जो चेंज इन वेलोसिटी होगा, सो दिस इज़ गिवन ओवर हेयर, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी जो है हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, इट इज़ फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल उसकी Q के ऊपर है माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, सी दिस वन, ये ट्राइंगल की 3 साइड है जिसमें ये दोनों सेम ऑर्डर में है और ये अपोजिट में है। ठीक है, तो इसलिए डेल्टा V क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1, ये बन जाएगा। ठीक है, सो दस द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन विल बी, एक्सेलरेशन की भी वही डायरेक्शन होगी जिस तरफ ये जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा। ठीक है, सो इट इज़ डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। नाउ द नेक्स्ट इज हाउ टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन। तो जो मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट एक्सेलरेशन का वो क्या हो जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट हो जाएगा जब उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में शो किया गया। नाउ वी विल लर्न ओवर हेयर दैट हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन दैट वी आर गोइंग टू लर्न ओवर हेयर। तो जिसमें हम सपोज कर रहे हैं स्टूडेंट कि ये जो V1 है वो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जब टाइम T1 था, और V2 जो है उस वक्त फाइनल वेलोसिटी है जब टाइम T2 हो जाता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी हमारे पास, सो एक्सेलरेशन इट इज़ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन बाय दैट चेंज इन टाइम। ठीक है, इससे लिखा गया। नाउ ओवर हियर वी आर सेइंग दैट इफ़, अगर हमारे पास इनिशियली जो टाइम था वो 0 था और उस वक्त जो वेलोसिटी थी वो लेट अस सपोज V0 है। ठीक है, और देयर इट इज़ जब टाइम T2 है। ठीक है, T2 मतलब कि हमने क्या किया, T सपोज कर लिया। ठीक है, तो उस वक्त जो वेलोसिटी है लेट इट टू बी V, ये जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है वो V बन जाती है। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या बन गया, सो एक्सेलरेशन विल बी डन, इट इज़ V माइनस V0 अपॉन में दिस T2 माइनस T1, सो इट विल कम T। ठीक है, क्योंकि T2 को T लिखा, बाकी T1 0 था, तो इसलिए ये एक्सेलरेशन बन गई स्टूडेंट हमारे पास। ठीक है, और जो हमारे पास वेलोसिटी है इन 2 डायमेंशन इफ़ वी टॉक अबाउट, तो 2 डायमेंशन में क्या होगा, इसकी डायरेक्शन रिक्वायर्ड होगी हमारे पास, तो इसलिए 2 डायमेंशन में आप वेक्टर का यूज़ कर लोगे, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पर प्लेस्ड द वेक्टर ओवर दैम। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द वेलोसिटी, सो देयरफॉर यहाँ से ये लेफ्ट साइड अगर जाता है स्टूडेंट तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो है इज इक्वल टू, इसको लेफ्ट साइड लाओगे सो इनिशियल वेलोसिटी प्लस ऑफ AT, एक्सेलरेशन भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, सो इट इज़ AT देन। ठीक है, सो इट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो इसमें V क्या है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी है जो आफ्टर टाइम T हमारे पास बनती है। ठीक है, सो इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हमारे पास जो वेलोसिटी थी स्टूडेंट उसको कैसे लिखा गया था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दैट वाज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस प्लस वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस।
ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में यही अभी तक हमने बात की है। और जो एक्सेलरेशन थी स्टूडेंट इंस्टेंटेनियस, तो उसको कैसे लिखा गया था? दैट वाज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड प्लस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अलोंग दैट वाई एक्सिस। तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में था इन दैट प्लेन। तो प्लेन के अंदर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमारे पास ये लिखी गई थी। ठीक है, सो देयरफॉर नाउ वी आर हैविंग दिस, देन हाउ विल यू राइट दिस इनिशियल वेलोसिटी? ये तो फाइनल वेलोसिटी लिखी गई, तो इनिशियल वेलोसिटी को आप कैसे लिखोगे उसके कंपोनेंट फॉर्म में जो प्लेन के अंदर आएंगे? सो इट इज़ दैट इनिशियल वेलोसिटी अलोंग दिस एक्स एक्सिस प्लस इनिशियल वेलोसिटी अलोंग दैट वाई एक्सिस। ठीक है, तो इस तरह से बताया जाएगा। सो देयरफॉर पुट ऑल दिस वन, देन हेयर वी विल गेट दैट इट इज़ वी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वी वाई जे यूनिट वेक्टर विच इज़ फर्दर इक्वल्स टू जो फाइनल इनिशियल वेलोसिटी है इन कंपोनेंट फॉर्म, इट इज़ वी नॉट एक्स आई प्लस वी नॉट वाई जे एंड प्लस ओवर देयर acceleration will come. So it is a x I plus a y j and that t. So this t will come over here. ठीक है, तो ये हमारे पास कंपोनेंट फॉर्म में उसको लिखा गया। ठीक है, नाउ हेयर वी कैन सी दैट जो लेफ्ट साइड है वी एक्स आई प्लस वी वाई जे यूनिट वेक्टर, इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर जो आई वाले कंपोनेंट है स्टूडेंट वो आप कलेक्ट कर लो। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, वी नॉट एक्स प्लस ए एक्स और टी ब्रैकेट के बाहर था तो वो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसलिए ए एक्स टी ये कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, प्लस वी नॉट वाई और ए वाई जे और टी ब्रैकेट में आएगा, तो ये जे एक्सिस यानी वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। सो दिस कलेक्ट दैम टुगेदर, इट इज़ वी नॉट वाई प्लस ऑफ ए वाई जे ए वाई टी and all are in j axis, that y axis. Okay, so we get that one. कंपेयर दिस टू, क्योंकि लेफ्ट साइड में भी आई और जे की फॉर्म है, राइट साइड में भी आई और जे की फॉर्म है। ठीक है, तो जिससे क्या होगा स्टूडेंट, हमारे पास ये जो वी एक्स है, वी एक्स, ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू दैट ऑफ वी नॉट एक्स प्लस ए एक्स टी, वाइल दिस वी नॉट वाई वी वाई जो इंस्टेंटेनियस लॉन्ग वाई एक्सिस है, इट इज़ इक्वल टू दैट ऑफ वी नॉट वाई प्लस ए वाई टी। दिस इज दैट वेलोसिटी कंपोनेंट। सो thus you will find over here that these final velocity equations are similar as that which were in that one dimension. वन डायमेंशन में भी तो हमने यही पढ़ा था, v इक्वल टू यू प्लस ऑफ ए टी। ठीक है, तो जब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो ये वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगी, एक्सेलरेशन भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगी। ठीक है, और जब हमारे पास वाई एक्सिस के अलॉन्ग फाइनल वेलोसिटी थी तो जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, तो ये यू वाई टी दैट ऑफ यू वाई प्लस ऑफ ए वाई टी, तो ये बन जाती है। ठीक है, सो दिस इज सेम एज इट इज़ ओवर देयर। ठीक है, सो दस वी कैन से दैट जो टू डायमेंशनल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है उसको हम इक्विवेलेंट टू वन डायमेंशनल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो है अलॉन्ग टू कोऑर्डिनेट एक्सिस कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि वन डायमेंशनल में तो हम ओनली एक ही डायरेक्शन लेते थे ना, लेकिन यहाँ पे वन डायमेंशनल जो है दो कोऑर्डिनेट्स में चल रहा है। ठीक है, तो उसके इक्विवेलेंट लिया जा सकता है। सो दिस इज दैट from my today's video. Thank you for watching it. Have a good time.